So today's topic is infectious disease epidemiology. Infectious disease epidemiology, dynamics and transmission, mode of transmission. So these are the two topics has been merged in it. We will try to summarize because all these topics cannot be covered in a long class. As far as the infectious disease epidemiology is concerned, because this is specific now. Specific in the sense, write down the epidemiology of a particular problem, maybe infectious or non-infectious, communicable or non-communicable. So the question here is, we are using the terms and various books are using different terms. So make a consensus, please come. So make a consensus. I go through 3-4 books of community medicine, and I was also discussing with our Menti group, roll number 1 to 8. What is the topic? Infection and epidemiology. It was not infection and epidemiology, it was infectious disease epidemiology, and this was the title given in the book of Park as well as Suryakanta. And when we go through from where they have taken this matter, so the matter was taken from one standard international book which I have brought just to show you. And this is the Control of Communicable Disease Manual. Control of Communicable Disease Manual. And it is published by, please no talks, it distracts me. आप बात करें तो वो आपके तक ही सीमित होनी चाहिए. यदि डिस्ट्रैक्ट करती है यहाँ तक, इसका मतलब वो लेवल ज़्यादा है, नॉइज पॉल्यूशन हो गया. सो व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? तो उस तरह से आप देखें डेफिनेशंस अलग होती रहती हैं. वैसे हम सब चीज़ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे उसको डिटेलिंग करें, वो एक अपने आप में इम्पोर्टेंट मैटर होता है. सो इट इज publication of American Public Health Association, 18th edition, and editor is David L. Heyman, and this is the 18th edition which was given in the reference. It is of 2008. It is revised every 4 years. So they have given explanation of terms. The same one is given in your books, and so I have write down the title of that given in the book, and so I will not cover here in detail because here nothing editing can be done. It is just like a Shabdkosh, vocabulary dictionary, where each word has its own meaning in that sentence. And what is the importance of learning all this is to learn the subject of medicine, science, art and science of medicine. You must know the vocabulary. जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक आप उसको समझते हैं उतना ही उसका इंटरप्रिटेशन होगा. इंटरप्रिटेशन होगा तो डिसीजन होगा, डिसीजन होगा तो राइट कंक्लूजन निकलेगा, राइट आंसर निकलेगा. और ये टर्म्स रोज काम में आते हैं. पब्लिक भी काम में लेती है, लेमैन भी, और एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए मेडिकल साइंटिस्ट और एज ए मेडिकल स्टूडेंट वी हैव टू लर्न, memorize by heart in that way. So they have used the term, again the
They have not used the word glossary, they have used the word commonly used terms. Commonly used terms. So, importance as far as the immediate one is concerned, most of the compulsory questions which are asked in the theory paper, they come from these terms. For example, in the book of Park or Suryakanta, they have given infection. What is infection? So they have defined infection. Then infectious disease. So what is infection? So they have given, it means successful entry, growth, development, multiplication, and finding a place in the animal or man body. It may present symptoms or may not present symptoms. That is, when the symptoms are there, it is a disease. There is no symptom, no subclinical infection as such. But there is an infection. But here we have to use the subclinical infection. So second term is a subclinical infection or apparent infection. So this, every word has given in this way. So this is a long list. So better daily go through 4 and 5 words, more details, and they will be useful to understand whole medical science. And every year new terms are added. Last row number 3, they are talking. And I am identifying from here this place. मैंने जैसे कहा बेटा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बहुत ज़रूरी है तो उसी हिसाब से बात करें, यहाँ तक नहीं आना चाहिए. तो ये जो टर्म्स आपकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या कि थ्योरी में तो पूछे जाते हैं. वाइवा जब आपका होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आप ये टर्म्स बार बार पूछे जाएंगे. मेडिसिन में, पीडियाट्रिक मेडिसिन में और कम्युनिटी मेडिसिन में. और जब बात करेंगे आप माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, तो यहाँ पे भी ये सब शब्द यहाँ पे काम आते हैं. तो यानी कहने का है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमारी है, उस पर कितनी मास्टरी है, तो हम उसी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टू द पॉइंट आंसर दे पाते हैं. और जो प्रिसाइज आंसर होते हैं, कंपलसरी होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लाइन में या टेलीग्राफिक आंसर लिखने होते हैं, तो वो एक्चुअली टेलीग्राफिक नहीं उसमें दिया होता, और वो एक एक इतना शॉर्ट और समराइज वे में लिखा हुआ है कि आप उसको मेमोराइज करें. अब जैसे कहा ना, एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सक्सेसफुल एंट्री, यानी जो ऑर्गेनिज्म जा रहा है, जैसे अपन ने कहा ना, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड हैज 3 थिंग्स, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट. तो एजेंट कैसा होना चाहिए, कितनी संख्या में होना चाहिए, किस तरीके से उसमें सर्वाइवल होना चाहिए, किस तरीके से. तो कहने का मतलब कि उसमें फिर आता है एक वर्ड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच. लिख लें आप ये चीज, ये जो कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड का मतलब है कि ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं एज ए एग्जामिनर इन द थ्योरी एज वेल एज इन द प्रैक्टिकल. आपको सुनने में अभी बहुत समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये याद नहीं रहेंगे. लेकिन ये बार बार यदि आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे या आप लोगों से पूछेंगे तो आपसे क्या पूछा जाता है, तो ये पूछे जाते हैं. अब उसके बाद में देना होता है सिर्फ एक एग्जाम्पल. तो इसी तरीके से सिर्फ इन्फेक्शन के जब अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें इन्फेक्शन के जो शब्द इसमें काम में लिए हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, फिर लेटेंट इन्फेक्शन. यानी इन्फेक्शन भी कितने तरह के हैं. लेटेंट यानी हिडन इन्फेक्शन. अब जैसे आपने देखा होगा कि प्राइमरी कॉक्स होता है, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और वो डायग्नोसिस भी करना इजी नहीं होता है, और कर भी लेते हैं तो अपन उसको जाते हैं कि इसका ये नेचुरल फिनोमेनन है, इसमें हमें ट्रीटमेंट नहीं देना है.
लेकिन दे फ्लेयर अप व्हेन देयर इज अदर इन्फेक्शंस आर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे मीजल्स हुआ तो मीजल्स फ्लेयर अप टू ट्यूबरक्लोसिस। अब मीजल्स के लिए जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ ये, वो था बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इस तरीके से जो मल्टीपल इन्फेक्शन, तो ये मल्टीपल इन्फेक्शन क्या हुआ, मोर देन वन इन्फेक्शन मे बी बिकॉज ऑफ एनी एजेंट। तो ऐसे करके जब तक इसको आप क्रिस्टल क्लियर नहीं करेंगे, मेमोराइज नहीं करेंगे बाय हार्ट, तो इनके आंसर नहीं दे पाएंगे। और यही क्वेश्चंस होते हैं जो आप में डिफरेंस लाते हैं। डिफरेंस कैसे लाते हैं, जो इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते उनके नंबर वैसे ही कम हो गए, गलत अटेम्प्ट कर लिया तो माइनस मार्किंग हो गई, और यदि सही अटेम्प्ट कर गया तो स्कोर में चले गए। और इसी तरीके से, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी है, कॉमनली यूज टर्म्स हैं, इस तरीके से आप देखना तो उसमें 2 पेज भरे हुए हैं। चाहे सूर्यकांता की किताब हो, चाहे अपने पार्क की किताब हो, मेरे पास जो पुराना एडिशन था, आपके पास लेटेस्ट एडिशन में भी कुछ और ऐड किए हो तो। अब जैसे इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसकी बार कोरोना है, इस सेंचुरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 1920 के बाद में 2020 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है, पूरे 1 सेंचुरी के बाद में शताब्दी की प्रॉब्लम है। अब उसमें नए नए टर्म्स आ रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं, और हम उस वजह से जो कॉमनेस्ट पेंडेमिक डिजीज हुई है, अब जैसे मैंने कहा ना पेंडेमिक डिजीज, व्हाट इज पेंडेमिक, व्हाट इज एपिडेमिक, व्हाट इज स्पोर्डिक, व्हाट इज, फिर एंडेमिक में भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते ना। जैसे पेंडेमिक किया था, एंडेमिक, फिर पेंडेमिक, फिर एपिडेमिक, फिर आपने कहा होलोएंडेमिक। अभी होलोएंडेमिक क्या है, यानी कहने का मतलब हर शब्द की समझने की बात आ गई। अब क्या हुआ, हर एक किताब ने अपने हिसाब से लिखने की कोशिश की तो बड़े पैराग्राफ लिख दिए, और लेकिन जब इन्होंने समराइज किया तो इन्होंने एक लाइन में 6-7 लाइनों में लिख दिया, वो कि वो किताब की नकल करी है ज्यादातर ने। लेकिन वो कॉपीराइट का चक्कर आता है तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन यदि उसको रेफरेंस में दे देते हैं, इट हैज बीन टेकन एंड ड्यू परमिशन दी हुई इन लोगों की, तो कोई समस्या नहीं आती है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके के वर्ड नहीं बार बार वाइवा में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो इसलिए ये क्वेश्चंस के लिए चैप्टर मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। तो प्राइमरी यूज ऑफ डिजीज एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, उस पर आ जाओ। तो अब एक वर्ड है क्रॉस इन्फेक्शन। ये क्रॉस इन्फेक्शन क्या है, जैसे क्रॉस इम्यूनिटी कहते हैं अपन बात। तो कहने का मतलब कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही ज्यादातर राइट ब्रीफ, राइट शॉर्ट, और ज्यादातर कवर करने के लिए कोर्स के लिए आजकल ये नया टेक्नोलॉजी चली है, तो जैसे प्रिसाइज करें। तो इसका एक ही आंसर है कि इस तरह के इन चीजों को चॉइस में नहीं छोड़ेंगे। मैं जब भी कहीं पर्सनल टू पर्सन बात करता हूँ, छोटे ग्रुप में बात करता हूँ, भाई आपने पढ़ा क्या, तो मालूम पड़ा सर हमने तो इसको चॉइस में छोड़ दिया। भाई चॉइस में क्यों छोड़ दिया, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। कल भी मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा था, उसी क्लास के अंदर छोटी ग्रुप में आया था, तो मैंने उससे बुला करके भाई तूने क्या पढ़ के आया था, मैंने जैसे बता दिया था पहले। उसने उसमें जो मेन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ थे वो छोड़ दिए। मैंने कहा इसमें ही तो सारा जिस्ट दिया हुआ था, बाकी तो उसकी डिटेलिंग थी। जैसे अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें सारी चीज दी हुई है कि इसमें अंदर आगे क्या आएगा, और लास्ट का पैराग्राफ तो कंक्लूडिंग होता है। तो आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कैसे जानकारी लेनी है शॉर्ट में, तो इसका तरीका ये है। और वरना आज की तारीख में न्यूज आइटम जितने शॉर्ट लिखे जाते, इतने शॉर्ट लिखे थे कि ये नहीं रहते गतांग से आगे या सी पेज नंबर सो ये लिखा ही नहीं होता आजकल। आजकल ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर हेडलाइंस दी होंगी, हेडलाइंस देने के बाद में उसमें लिखा पेज नंबर इतने पे पड़े, बस इतना सा लिखा होगा, क्योंकि उसने वहां पे जगह ही नहीं थी उसको देने के लिए। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये। अब इम्पोर्टेंट न्यूज में जो टाइटल दिया, तो टाइटल में सारी कहानी आ जाती है वैसे तो, लेकिन टाइटल में यदि सारी कहानी नहीं आई तो उस दिन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको वो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, लोगों की जानकारी में लाना चाहते हैं, वो है उसमें। तो इस तरीके से आप इसको लर्न करना सीखें। एक तो पढ़ना है, पढ़ने के बाद में लर्न करना है, तो पढ़ने का भी तरीका सुधारें और लर्न करने का तरीका सुधारें, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी।
क्योंकि जो एपिडेमियोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो ज़्यादातर हमारे यहाँ माना जाता है कि जैसे अपना में सब स्पेशलाइजेशन है, सुपर स्पेशलाइजेशन में आता है एपिडेमियोलॉजी। जबकि मुझे आज भी याद है जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की तो मेरे हेड ने मुझे ये टॉपिक पढ़ाने के लिए दे दिया मुझे, जबकि मैं पीजी भी नहीं था, अभी तो 3 महीने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किए हुए थे। और मुझे कहा गया कि यू आर द मोस्ट सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर ऑफ राजस्थान बाय आरपीएससी एंड यू आर ए क्वालिफाइड टीचर, नो नीड टू अटेंड इन द पीजी क्लासेस एंड यू हैव टू टेक द क्लास। तो मैंने उस दिन भी एपिडेमियोलॉजी के लिए पढ़ाने के लिए क्या ली, मैं लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में जाकर के एपिडेमियोलॉजी के जनरल जो आते थे उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग यू 79 एग्जैक्टली 40-45 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। और मैंने जाकर के उसमें एडिटोरियल पढ़ा और एडिटोरियल का जो फर्स्ट लाइन थी वो पढ़ी, इट इज द सब्जेक्ट विच टेक्स टू द प्लेसेस वेयर नोबडी हैज रीच्ड सो फार। ये उसका सेंटेंस था, आज तक भी याद हो गया। जैसे कहते हैं ना, कभी उन जगह ले जाता जहाँ आज तक कोई नहीं पहुंचा, वैसे ही एपिडेमियोलॉजिस्ट को या एपिडेमियोलॉजी के यहाँ ले जाती है आपको जहाँ आज तक कोई नहीं पहुंचा है। यानी जो कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, जासूसी करनी है, जो भी करना है वो है, यानी जिसके बारे में आपको इन डेप्थ जानकारी लेनी है तो उसके लिए आप एपिडेमियोलॉजी करें। फिर मैंने ऐसे ही जो आगे पढ़ा कि एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, ये मैं बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पीजी में खास तौर से बार बार पूछा जाता है, मैंने गोदारा इसको नोट कर लो, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच हम बार बार पूछते हैं, लेकिन इतने बार समझाने के बाद में भी वहां पे जवाब नहीं आता। उसका कारण क्या है कि आप पहले से वायस होते हैं, प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, जबकि हम आपको नोट करवा रहे हैं कि नोट कर लो। और सिंपल आंसर होता है, व्हाट इज अप्रोच, इट इज ए अप्रोच टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आपकी जो भी समस्या है उस दिन की, उस समस्या को सॉल्व करने का तरीका है। आप हेल्थ प्रॉब्लम की बात तो हेल्थ प्रॉब्लम लिख लो, और उसमें क्या करना है, वही www जो है ना, आई हैव 6 ऑनेस्ट असिस्टेंट्स और फ्रेंड्स और हेल्पर्स और सर्वेंट्स, वो है ये व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, वो सारी चीज़ों के आंसर मिलते गए तो आपको ग्रुप नोट, शॉर्ट नोट, सब चीज़ मिल गई। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अपना मालूम पड़ गया। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच हो गई। तो इस तरीके से आज का मेरा जो टॉपिक था, तो मैंने सभी से कहा कि मुझे कोई ऐसी कोई पीपीटी किसी ने बना रखी हो पहले से डेफिनेशन की और की नहीं मिली। तो मैंने फिर डिसाइड किया ये सब चीज़ें देखने के बाद में, और ये किताब मेरे पास थी, लाइब्रेरी से इश्यू कराई हुई, मैंने पहली बार मंगाई थी। इसके पहले लाइब्रेरी में हुआ भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं सीडीसी अटलांटा गया था 1991 में, तब अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के मेंबर होते थे, उनका प्रेजेंटेशन होता था, और उसी टाइम हमें इसका बहुत पतला सा एडिशन दिया गया था। फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई स्टेट लेवल पे फॉरेन असाइनमेंट सर्विस के अंदर, तो मैं इस तरह किसी बुक से ही गाइड करते हुए काम करता था। तो मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें सारे आंसर दिए हुए हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम नया जानना चाहते हैं। भाई नया कुछ नहीं है, पहले तो है क्या वो जानो एग्जैक्टली, और अपडेटेड क्या है वो जानो, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें वो जानो। तो इसीलिए कहते हैं थिंक एपिडेमियोलॉजिकली, थिंक एपिडेमियोलॉजी, एक्ट सोशली। अब सोशली कैसे करना, हर समाज की, हर कल्चर की, हर कंट्री की अपनी समस्या है, और उन्हीं समस्याओं में आपको इस समस्या का हल तुरंत देना है, उसके लिए वेट नहीं करना है। और वो एरिया है जिसको आपने चूज किया है एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट कौन है, जो भी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज को ज्वाइन करता है एमबीबीएस करने के बाद में, वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का काम वही करेगा पब्लिक का। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अपन बात करें, सुपर स्पेशलिटी की, वो एक एरिया अलग है, वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, जो कहते हैं ट्यूबुलर विजन वाला विजन है। और यहाँ पे आपको ब्रॉड विजन रखते हुए डे टू डे की नई प्रॉब्लम्स जो आती हैं, चाहे वो इन्फेक्शियस हो चाहे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो, यानी कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, उनके सॉल्यूशन देने हैं। अब जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की अपन बात करते हैं, तो जो कॉमनेस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, एनीबडी? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, माल न्यूट्रिशन।
अब माल न्यूट्रिशन के लिए अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन दोनों प्रॉब्लम हो गई और ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो एपिडेमियोलॉजी की अपन जब बात करें तो इसमें हमें ज़्यादा करनी है। फिर अपन जब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो उनकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो कौन से हैं? नॉन कम्युनिकेबल में है। उनसे कौन से होते हैं? मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू लो IQ, मेंटल रिटार्डेशन, डेफ एंड डम, वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। और सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन ये था कि प्रिवेंशन था, आयोडाइज साल्ट लेना था, यूनिवर्सलाइज करना था। और पब्लिक ले रही है कि नहीं ले रही है, यानी वो एक्टिव फॉर्म में जा रहा है नहीं जा रहा है, उसी तरह के टेस्ट लगाने थे, उसी तरह से पब्लिक को एजुकेट करना था। अब क्या कर सकते हैं? अब लेटेस्ट के हिसाब से तो जो भी आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना है, रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट करना, वही तो है। अर्ली डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट तो यही है कि अब तो सिर्फ आपके लिए इसको डिसेबिलिटी लिमिटेशन वाला टर्शियरी प्रिवेंशन लेवल आ गया। तो उस तरीके से आपको इसमें बढ़ना है। अब जैसे मेंटल इलनेसेस नंबर 2 भी आज की तारीख में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, लेकिन हम हमेशा किसकी बात करते हैं? हार्ट डिजीजेस की। कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर क्यों बढ़ रहा है? कैंसर की डिटेक्शन की टेक्निक्स आ गई हैं। यदि आप अर्ली डिटेक्ट करते हैं, लेकिन वो डिटेक्ट कौन से आपके स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं जो कि अफोर्डेबल है कि नहीं है, एसेसेबल है कि नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं है, कहाँ पर? कंट्री साइड में, पेरिफेरल साइड में, विलेज लेवल पे, तो सक्सेसफुल होंगे। वरना तो कैंसर भी एडवांस स्टेज में आएगा जहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितना ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान और चिरंजीवी में कहे कि हम 10 लाख का ट्रीटमेंट देंगे, कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी फैमिली के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी। तो इसके लिए आंसर क्या है? जैसे मैंने भी बताया, एपिडेमियोलॉजी, थिंक एपिडेमियोलॉजिकली, एक्ट सोशली। अब जब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की, तो एपिडेमियोलॉजी कहाँ से शुरू होती है? स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स। और कब से है? फादर ऑफ एपिडेमिक्स, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसको माना जाता है आज की डेट में? जॉन स्नो, जो कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट था, जिसने कोलेरा का ऑर्गेनिज्म भी डिटेक्ट नहीं हुआ था, तो माइक्रोस्कोप भी नहीं आया था, उसने कोलेरा का इन्वेस्टिगेशन करके लंदन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। वो एनेस्थीसिया से था। तो वो क्या था कि उसका सोचने का तरीका, थिंक एपिडेमियोलॉजिकली, एक्ट लोकली या सोशली। मैं सोशली वर्ड इसलिए लिया है कि लोकल में भी सोशल चीजें काम करेंगी, तो उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ पैटर्न क्या है, जिस चीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जो मैंने इसको कवर कर दिया यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, डायनेमिक्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। सो प्राइमरी यूज ऑफ डिजीज एपिडेमियोलॉजिस्ट कॉन्सेप्ट इज द रिसर्च। रीसर्च, री यानी दोबारा, सर्च यानी खोजो देखो। आज तक हमें कलरफुल डायग्राम देखते हैं, लैब का देखते हैं, लैब का कोई रोल नहीं है। सबसे बड़ी लैब है आपका घर, आपका बाहर का वातावरण, एनवायरनमेंट, जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम निकालते हो। और उसमें 10 तरह की बातें उठ रही हैं, 10 बातों को आप सोचते हो और सोच करके उसको रिलेट करने की कोशिश करते हो। फिर उसके बाद में जिस लैब का जो डायग्राम आप देख रहे हो, उसके लिए कोई रिसर्च के लिए कोई लैब टेस्ट है क्या? और लैब टेस्ट है तो उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी क्या है? और उसके बाद में भी यदि अपन ने टेस्ट लगा के डायग्नोस भी कर दिया, और यदि हमारे पास उसका मैनेजमेंट नहीं है, जैसे हमने स्क्रीनिंग के मेथड्स में कहते हैं कि उन डिजीजेस की स्क्रीनिंग नहीं करनी चाहिए जिनका हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ ये लंबी लिस्ट बनाने के लिए कि सर मैं इसका स्पेशलिस्ट हूं, मैंने इतनी डिजीज डायग्नोसिस कर दी, उससे नहीं है। हमने उसका यूटिलाइजेशन यानी वेलफेयरनेस में कितना काम आया, इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च, देन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। अब आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन की बात अपन करें, जब भी आपके घर में किसी को लूज मोशंस होते हैं, वोमिटिंग होती है, पेन एब्डोमेन होता है एक साथ 1 2 3 को, तो आपके इमीडिएट ही आता है कि क्या समस्या क्या आ गई। आज की तारीख में जो सीरियल्स भी आते हैं उसमें भी देखा होगा, भागले की दुनिया में चल रहा है, डॉक्टर के संबंधित ही प्रॉब्लम बता रहे हैं कि डॉक्टर इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, उसके बावजूद भी उनको
अब्यूजिव लैंग्वेज सुननी पड़ती है, बल्कि वायलेंस का फेस करना पड़ता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। जैसा कि अभी लास्ट शोट में तो उस केस में भी यही बताया कि मैंने तो इतना सर्व किया, इतना काम किया, उसके बावजूद भी मुझे मिला क्या, यानी मेंटल प्रॉब्लम, टॉर्चर। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? तो वो रिसर्च एंड आउटब्रेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सुसाइडल टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है, लोगों की वायलेंस की चीजें क्यों बढ़ रही है, ये नए इनके इन्वेस्टिगेशन करने की बात है। और इनका ट्रीटमेंट क्या है? फिर इनका ट्रीटमेंट वही बात आ गई जब अपन बात करते हैं हमारे पास अवेलेबल मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है और उनमें से कौन सी कारगर होगी, कैसी होगी और किस पे कौन सी होगी। यानी सब पे एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है कि आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन जो नए नए हो रहे हैं उनको आपको करना है। अब आज की तारीख में हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कहते हैं कि आपके यहाँ होने वाली कॉमन डिजीजेस की एक लिस्ट बनाओ, और खासतौर से उन लिस्ट बनाओ जो एक साथ कई बार रिपोर्ट हुई हो किसी फैमिली में, किसी कॉलोनी में या किसी ग्रुप में, और उसका इन्वेस्टिगेशन करो। अब ये जो एक्सरसाइज देते हैं जो अभी चल रहे हैं ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्ड एक्सरसाइज, उसमें इस तरह की बातें न तो इस तरह से किताबें लिखी हुई है, न इस तरह से टीचर पढ़ाते हैं कि प्रयास करते हैं, और न स्टूडेंट चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे किस काम की अभी से ही, जबकि ये काम यही आएगी। अब उसी तरह से मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन में कुछ सालों में तो आपको चेंज मिल जाएंगे, लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं मिलेगा। लेकिन इसका फिर भी क्या मिलेगा? प्रोटोकॉल, एक कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे उसको आगे बढ़ना है, यानी वेरिफिकेशन कि है भी कि नहीं। फिर है उसकी आइडेंटिटी करना, वो किसके आधार पे, वो जो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच मैंने बताई थी ये तो वो अलग होंगी। तो इस तरीके से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी तरह की परेशानी जिसको कहते हैं ना, हड़बड़ाहट होती है, परेशानियां बढ़ती हैं, बेचैनी बढ़ती है, और पब्लिक में सेंसेशनल उस तरीके से डर बैठ जाता है, भय बैठ जाता है, वो नहीं होगा, न डॉक्टर्स में होगा, न पैरामेडिकल टीम्स में होगा। तो ये इस तरीके की चीजों को सोचने के लिए मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, नए टर्म्स आ रहे हैं, तो वो अपने इस टर्मिनोलॉजी में और शामिल करते हैं। अब जैसे अभी कोविड से संबंधित कहें, भाई कोविड को हम किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे, तो उसमें भाई कौन से टेस्ट हैं, भाई रिकवरी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है। फिर अपन उसमें कहते हैं कि डिफरेंट जो टेस्ट लगाते हैं, तो टेस्ट के अंदर उसकी डिटेलिंग करके आपने स्टेटिस्टिकली बताया कि इसकी सिग्निफिकेंस कहाँ तक है, नहीं है, कैसे है, वो माइक्रो में चले जाती है। तो उस तरीके से एडवांस एपिडेमियोलॉजी की तरफ आप बढ़ सकते हैं, जिसको कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटल और लेबोरेटरी एपिडेमियोलॉजी। और दूसरी होती है एनालिटिकल, जिसमें सिर्फ आपको काउंट करना है, डिवाइड करना है और रेट्स निकालनी है, और उससे रेट्स निकाल करके आपको जहां पे सिर्फ नंबर बोल करके नहीं करना, नंबर से तो मालूम नहीं पड़ता कि मान लो ज्यादा रिपोर्ट, ज्यादा केस इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं और उसमें नॉर्मल आ रही है सब चीजें, तो हम उससे निकालते हैं कि भाई इतने टेस्ट करने के बाद में इतने से पॉजिटिव निकले, तो रेट तो बहुत कम थी, और हमने 10 सैंपल लिए, 10 में से 5 में निकल गई, और 1000 में से 5 निकली, तो बड़ा डिफरेंस है। तो 5-5 बराबर नहीं है। तो इस तरीके से एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल आ जाए, तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं CDC, काउंट डिवाइड एंड कंक्लूड। तो थ्री सिंपल चीजें। फिर कंट्रोल ऑफ एक्यूट माइक्रोबियल थ्रेट्स। अब एक्यूट माइक्रोबियल थ्रेट्स क्या हो रही हैं कि आज की डेट में ज्यादातर एंटीबायोटिक्स, और क्या अपन बात करें तो 1940s के बाद की बात है, पेनिसिलिन से शुरू हुआ था, सल्फर से हुआ था, और आज की तारीख में वो पेनिसिलिन सल्फर से ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेसिस्टेंस डेवलप हो चुका है। हम उससे अब लेटेस्ट सब सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में रिफामाइसिन, एथम्बुटोल, और इसकी उसमें भी हमारे यहाँ ड्रग रेसिस्टेंस आ गया है। और क्योंकि इनका इतना उपयोग हुआ है, इतना मिस यूज हुआ है, जिसको एब्यूज कहते हैं, कि आज की तारीख में हमारे पास जो बेस्ट टूल थे वो उपलब्ध अब ज्यादातर में इफेक्टिव नहीं है। तो उसी वजह से आज की तारीख में हमने अपनी पॉलिसीज को चेंज करके, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का मैनेजमेंट था, पहले हमने बाई वीकली डोज देते थे, आज भी डोज तो देते हैं, लेकिन आजकल डेली देते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ट्रीटमेंट
हम सीबी नेट एग्जामिनेशन करते हैं और उसके लिए लैब फैसिलिटी हमने सब जगह मोलिकुलर लैब जो है हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध करा दी है। हम ट्रीटमेंट लेट कर देंगे लेकिन पहले इंश्योर करेंगे कि उसमें डिजीज का लेवल क्या है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई है वो सेंसिटिव है या रेसिस्टेंस है। सेंसिटिव है तो सेंसिटिव के हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे और उसमें किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की प्रयास करने के लिए डॉट्स देंगे और उसका पूरा का पूरा कोर्स जो भी 6 महीने 9 महीने का हमने डिसाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द केस उसको इंश्योर करेंगे, चाहे वो पेरीफेरी में क्योंकि सारे केसेस जो रिपोर्ट कहाँ होते हैं, क्योंकि रिलेशन एविडेंस कहते हैं पॉवर्टी और डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज का बड़ा रिलेशन है। और पॉवर्टी कहाँ है, जैसे जैसे आप सेंटर से न्यूक्लियस से दूर जाएंगे यानी कैपिटल से दूर जाएंगे पॉवर्टी नजर आएगी। तो उनको मैनेज करना, उनको मैनेज नहीं करेंगे तो वो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो थ्रेट है हमारे लिए भी, जो उनको डायरेक्टली डील करेंगे क्योंकि ये अल्टीमेटली हमें अटेंड करने पड़ेंगे। और नहीं तो वो एनवायरनमेंट में जो तीसरा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में अपन कहते थे या क्वाड्रेंट में कहेंगे, तो एनवायरनमेंट में वो चीज़ें फैलेंगी। तो कौन सा एनवायरनमेंट और कहाँ तक कंट्रोल करना है वो भी सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारे रिसोर्सेज सब लिमिटेड हैं, चाहे वो मटेरियल है, चाहे मनी है, चाहे मैन पावर है। और फिर टाइम भी इम्पोर्टेंट है, तो टाइम भी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, वो भी हमारे पास लिमिटेड है। तो इसलिए हमें बार बार नई नई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी और स्ट्रेटजीज वो होगी लोकल बेस्ड पे, उस कॉलोनी पे, उस कल्चर पे, जो भी है ना कम्युनिटी जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उन पे, और उनको कैसे कवर किया जाए जिससे चाहे क्या कितनी दूर भी हो लेकिन हम उसको मिस नहीं करें। और कब तक उसको फॉलो करना है, तो उसके लिए जैसे कहा ना इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड भी कितने तरह के, एक्स्ट्रा इंक्यूबेशन पीरियड, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। अभी एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड और इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड है, कहाँ लागू होते हैं, कैसे लागू होते हैं, और नई डिजीजेज में कहाँ लागू होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं। तो इस तरीके से आज अपन डिटेल में अभी लेंगे इन्हें। प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक इन्फेक्शियस डिजीजेज। अब एंडेमिक इन्फेक्शियस डिजीजेज इतनी कॉमन है, तो ये जब आप प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर में 8 जनरल एलिमेंट है और दुनिया में कहते हैं कि यदि हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल करवानी है तो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल मोस्ट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पर्सन विल बी कवर्ड बाय इट, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। और जो टर्शियरी केयर सेंटर है या स्पेशलाइज्ड आजकल जो क्वार्टरी के जिसमें कह रहे हैं ना, जहाँ से ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह, बहुत लिमिटेड लोगों को सेवाओं की उनकी जरूरत पड़ेगी। जो चेंज हो रहा है सीनेरियो, उसके अंदर आपके आज की तारीख में आपके उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी तहसील लेवल पे, उसी ब्लॉक लेवल पे सब सेवाएं मिल जाएंगी। और यदि किसी को रेफर करना तो विलेज से सीधा का सीधा एपेक्स इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं, सुपर स्पेशलाइज्ड सेंटर जिसमें कहते हैं, जो रेयर डिजीज की अपन जिसमें बात करते हैं, वहां आपको मैनेजमेंट मिल जाएगा। यानी ये प्लानिंग इस तरीके से, मैनेजमेंट का इतना जबरदस्त रोल आ गया है कि जिसमें नॉन मेडिकल लोग जिनको अपन कहते हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और वो इन चीजों को और स्मूथ कर रहे हैं और ऑथेंटिक और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर रहे हैं। और इसी वजह से आज की तारीख में हमारा प्रोफेशन और स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन यदि इन सब चीज़ों से बदलना है तो इसको कंप्रेहेंसिवनेस अच्छी आनी चाहिए, लर्निंग सही प्रॉपर है, प्रॉपर अपन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, ऑनेस्ट ही रखते हैं, तो कोई स्ट्रेस की बात ही नहीं है। सो प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम कहते हैं ज्यादातर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। लिख लो, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। और इसी पे ही अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं, गोल नंबर 3 है, उसमें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस है और वही हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 पे है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 पे है। फिर बायोटेरिज्म, प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स प्लानिंग एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस। तो अभी मैंने आपसे जो लास्ट में जो बात की पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस वेरी करेगी फ्रॉम टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज, उसी स्टेट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में।
और वो डिपेंड करेंगी कलेक्शन ऑफ प्रॉपर डेटा, यानी नोटिफिकेशन ऑफ डिजीजेज होता है ये जो चलता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम में, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस। तो सर्विलेंस यानी कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर एक्शन। तो हमने कुछ 23 डिजीजेज छांट रखी हैं, डिफरेंट हेड्स बना रखे हैं, और उस हेड के आधार पे हम डेटा कलेक्शन करते हैं डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, और उसके हिसाब से हम कहते हैं कि हमारा ये एरिया फ्री है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं पे प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है तो तुरंत वहाँ पे एक्शन लेने के लिए आज की तारीख में इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज की, जैसे कहते हैं ना WHO सर्विलेंस ऑफिसर्स, वो तक लगे हुए हर जगह पे। वो तुरंत ही जहाँ रिपोर्ट आती है तो 24 आवर में एक्शन लेने के लिए सुपर स्पेशलिस्ट जैसे अपन बात करते हैं वो वहाँ चला जाता है एट द पॉइंट पे, क्योंकि जितना जल्दी जाता है उतना जल्दी स्प्रेड रुकता है। स्प्रेड रुकने से वो एपिडेमिक जो आउटब्रेक है वो एपिडेमिक में कन्वर्ट नहीं होता है। आउटब्रेक है, आउटब्रेक के बाद में एपिडेमिक बनता है, यानी मोर केसेस ट्रांसमिशन इज देयर। आज यदि मान लो कहीं स्मॉल पॉक्स रिपोर्टेड होता है तो उसका आउटब्रेक की रिपोर्टिंग है, उसको कंफर्म करेंगे। यदि वो 1 से 2 में हो गया तो यानी ट्रांसमिशन हो चुका है, 2 से 4 में हो चुका है तो सुपर ट्रांसमिशन हो चुका है, और वो एक बड़ी बिग प्रॉब्लम है। ऐसे ही आज की तारीख में जो डिजीजेज हमने फ्री कर दी, जैसे पोलियो फ्री हो गया हमारा कंट्री, अब कहीं से पोलियो रिपोर्ट होता है वाइल्ड पोलियो बाय वाइल्ड, तो वो अपने आप में एक समस्या है। टेटनस है यहाँ, जैसे मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटनस है, वो कंट्रोल में आ चुकी है और एलिमिनेट हो गई। एलिमिनेशन का मतलब डिजीज इज प्रेजेंट बट इज नॉट इन ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, इट इज नॉट इन ए पोजिशन टू ट्रांसमिट फर्दर। तो उसका एलिमिनेशन क्या है, जस्ट उन क्रोनिक डिजीजेज में हमने जिसमें हम प्रिवलेंस रेट देखते हैं ज़्यादातर में, उसमें लागू होती है। लेकिन जिसमें शॉर्ट पीरियड होता है यानी एक्यूट डिजीजेज होती हैं, उनके अंदर हमारे पास दूसरे क्राइटेरिया है, उसके लिए एलिमिनेशन शब्द नहीं काम में लेते फिर हम। जैसे अभी कोरोना जीरो टॉलरेंस वाली बात कर रहे थे, ताइवान में, चाइना में, सब ने अब WHO की आ रही है कि जीरो टॉलरेंस इस पे लागू नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी कि ये जो है इसका जो वायरस है यानी जो एक्टिव एजेंट है वो क्या है कि उसको रिजर्वायर कई जगह पे है, यानी उसका अकेला मैन नहीं है, उसमें एनिमल्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें बर्ड्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें और भी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो उसमें ये लागू नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप एपिडेमियोलॉजी को पढ़ेंगे ना तो बड़े इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन वो जब स्पेसिफिक डिजीज पे आएंगे तो स्पेसिफिक आ जाएगी, लेकिन मैं जनरल की बात कर रहा था। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज की बात कर रहे हैं, एजेंट चाहिए। अब आज की तारीख में हमारे कौन सी डिजीज इंडिया में नहीं है जो कि इंटरनेशनली नोटिफाइबल है? एनीबडी? येलो फीवर। येलो फीवर अभी तक इंडिया से रिपोर्टेड नहीं, क्योंकि एजेंट नहीं है, होस्ट भी है। वी आर ऑल ससेप्टेबल होस्ट फॉर येलो फीवर एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट येलो फीवर बाय वैक्सीनेशन। जो इंटरनेशनल वैक्सीनेशन लगा करके अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में गए हैं और जिन्होंने वैलिड सर्टिफिकेट ले रखे हैं वो ससेप्टेबल, बाकी सारी पॉपुलेशन ससेप्टेबल है। एनवायरमेंट में जो चाहिए एडीज, मॉस्किटो, वो एबंडेंस में है। तो क्या चीज है? एजेंट नहीं है। सोर्स ऑफ एजेंट, तो सोर्स ऑफ एजेंट है पेशेंट होता है, केस या कैरियर होता है। फिर क्या था? पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम द होस्ट, यानी सक्सेसफुल एजेंट वो होगा जो वापस बाहर निकल सके। अब जैसे अपन जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, कॉमन कोल्ड है, बड़ा कॉमन है, बरसों से चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सोर्स काफी कॉमन है। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट, कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, लाफिंग, हर तरीके से निकलता रहता है। हम बात कर रहे हैं सलाइवा में मौजूद है, बलगम में मौजूद है, तो सलाइवा इज द कॉमन, बलगम तो किसी के हो या नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी फिर चेंजेस, म्यूटेशन बड़े कॉमन है वायरस में, तो इस वजह से चीज। देन सूटेबल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बड़ा सूटेबल है, जस्ट क्लोज कॉन्टैक्ट,
क्या? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसी आपकी, जैसे अपन ने कहा ना कि कितने गज की दूरी, उस दूरी तक अपना आप ही वहां तक जाता है। तो सूटेबल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो क्या है? बोलने खांसने जरूरी है, इसलिए ज्यादा ज्यादा कब तक रखेंगे मास्क? प्रोटेक्टिव तो देगा, कंट्रोल भी करेगा, लेकिन बात कर रहे हैं एजेंट की। एजेंट के अंदर ये सुपर स्प्रेड करने की बात करेगा। पोर्टल ऑफ एंट्री सूटेबल फॉर एजेंट, फिर एंट्री भी तो कैसे जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, रेस्पिरेटरी चल जाता है, या बाय माउथ एलिमेंट्री ट्रैक्ट से चला जाता है, तो जिससे जीआईटी सिम्टम्स वगैरह आते हैं। देन ससेप्टेबल होस्ट इज रिक्वायर्ड। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की अपन बात करते, एजेंट हो गया, अब ससेप्टेबल होस्ट। तो ससेप्टेबल वन हु हैज नो इम्यून डिफेंसेस, जिसने पहले यदि डिजीज हो चुकी है, उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है एक्टिव, या मदर से मिल रही है तो पैसिव इम्यूनिटी है, या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से आपको पता नहीं पड़ा और आपके नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, या इम्यूनाइजिंग एजेंट सामने ले लिए हैं। तो ये है चेन मॉडल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। कॉजेटिव एजेंट, रिजर्वायर ऑफ सोर्स, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, portal of entry, and the susceptible host. Source of infection: the person, animal, or substance from which the infectious agent passes or disseminated to the susceptible host. अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन हुए इसमें? पर्सन्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और सब्सटेंसेज फ्रॉम विच एन इन्फेक्शन एजेंट पासेज, यानी फोमाइट्स भी हो गए, इन्वर्टिब्रेट्स भी हो गए, और कौन हो गए? बर्ड्स हो गए, जिनको अपन ज्यादातर एनिमल के नाम से काम में नहीं लेते। और आज की तारीख में बर्ड से होने वाली बीमारियां ज्यादा हैं। आज की तारीख में जितने भी आपके चल रहे हैं रेबीज वगैरह जूनोटिक डिजीजेज हैं, वो बर्ड्स के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू होती हैं। आज भी बर्ड इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू और ये बड़े कॉमन है पूरी दुनिया में, और आज भी उनकी थ्रेट बनी रहती है। और हमारे यहाँ भी जब भी फैलते हैं तो हमें पोल्ट्री में इनको कंट्रोल करने के लिए सारे बर्ड्स को किल करना पड़ता है। So refer to the immediate source of infection and may or may not be the part of the reservoir. ये क्या है? कौन सा एनिमल है ये? कौन सा इंसेक्ट है? एंटोमोलॉजी में आता ना, रेड फ्ली। अब रेड फ्ली से कौन सी बीमारियां फैलती हैं? अब ये क्या जूनोटिक डिजीज है, एनिमल टू एनिमल चलती है, एपिजूनोटिक डिजीज है। अब ये शब्द आ गया ना, इसने कहा ना टर्मिनोलॉजी है, तो इस किताब ने तो अल्फाबेटिकली दिए हुए हैं, आपकी किताब में भी इस तरह से दिए हुए हैं। तो जूनोटिक डिजीजेस जहां आ रही हैं, तो जूनोटिक डिजीज का एनिमल टू एनिमल है, मैन टू एनिमल है, एनिमल टू मैन है, आगे ना इस तरीके से इसको आपको उनको डिजीज का देखना, उसका समझना है। अब इसमें रेड फ्ली कंट्रोल करने की बात आ गई। अब रेड फ्ली किस में रहती है? रोडेंट्स में, रेट्स में। अब रेट का कंट्रोल कैसे करना? तो रेट भी कितने तरह के होते हैं, वो कौन सा रेट कहां मिलेगा? तो अननेसेसरली रेट्स को मारना भी नहीं है, क्योंकि इकोसिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो ये होते हैं वाइल्ड रोडेंट्स में, जंगल में जो भी रहते हैं, और हमारे डोमेस्टिक रोडेंट्स अलग हैं। अब स्ट्रीट फूड एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, आज सबसे बड़ा है फूड पॉइजनिंग के केसेस होते हैं खूब ज्यादा। कह देते हैं जंक फूड खाने से हुआ, जैसे अभी वागले की दुनिया में चल रहा है, तो उसमें बताया है कि साहब जंक फूड कैसे हुआ, ये क्या प्रॉब्लम हुई? पेट में दर्द हुआ। कैसे हुआ? जंक फूड खाया। जंक फूड कौन सा खाया? वेंडर से खाया। वेंडर से क्या लिया था? वो आपकी तारीख में जंक की लिस्ट आपकी नई रोज तैयार हो रही है आजकल लोगों, यंग जनरेशन को, यंग बॉयज को, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। आप नहीं है तो कम से कम अपने यंगर ब्रदर्स को, सिस्टर्स को शामिल कर सकते हैं। उनकी इंटरेस्ट क्या होता है? इस तरह की चीजें को लेने का, और उसी से ज्यादातर पहले से प्री फॉर्म्ड या तो टॉक्सिन्स चले जाएंगे, जो 4 घंटे 3 घंटे बाद में आपके फूड पॉइजनिंग के रूप में सामने आएंगे। स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, और या फिर जो बैक्टीरिया वायरस जाएंगे या पैरासाइट जाएंगे, दे विल क्रिएट ए प्रॉब्लम।
उस वजह से. So reservoir, any person, animal, arthropod, plant, soil or substances in which the infectious agent lives and multiplies, on which it depends primarily for survival and where it reduces itself in such a manner that it can be transmitted to a susceptible host. So plague रिजर्वायर तो हो गया आपका रैट या रोडेंट्स. रोडेंट्स में रैट अकेला नहीं, डिफरेंट रोडेंट्स भी आते हैं उसमें. एंड मेन एज ए रिजर्वायर ऑफ ड्रैकनकुलेसिस मेडिनेंसिस. अभी एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए पुरानी किताबों में से बने हुए हैं. तो अब ड्रैकनकुलेसिस मेडिनेंस का क्या स्टेटस है? इट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. नारू रोग कहते थे. इसे कई मीटर्स का होता था, जिसको जैसे चरखी पे अपन डोर लपेटते हैं वैसे लपेटा करते थे माचिस पे और पे. और ये अकेला सोर्स था और कोई नहीं है. तो हमने इसको कंट्रोल कर लिया, इरेडिकेट कर दिया. क्लियर हो गई? तो ये जो होता है ना, रिजर्वायर एंड सोर्स आर नॉट ऑलवेज सिनोनिमस. रिजर्वायर एंड सोर्स आर नॉट ऑलवेज. रिजर्वायर एक अलग चीज है और सोर्स अलग चीज है. सोर्स में का मतलब रिजर्वायर नहीं है. टाइफाइड, source refers to the immediate source of infection and may or may not be part of the reservoir. यानी आपने जो भी कोई पानी पिया, फूड खाया और है, तो वो आपका क्या हुआ? सोर्स ऑफ इंफेक्शन हुआ. हुकवर्म इन्फेस्टेशन, एंकाइलोस्टोमाइसिस, ये क्या होता है? सॉइल में होता है इसका. और सॉइल में क्या होता है? इसका लार्वा होता है एंड उसकी एंट्री आपके स्किन के थ्रू होती है. एंड देन इट गोज टू डेवलपमेंटल चेंजेस. प्लेग, वी हैव ऑलरेडी टॉक. ड्रैकनकुलेसिस एंड एक्सेप्शन इज द टेटनस. टेटनस क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, क्योंकि दिस इज द एंड. बिकॉज यहाँ पे जब एंट्री कर लेता है टेटनस बैक्टीरिया, उसके बाद में स्पोर्ट्स के रूप में आता है, फिर डेवलप होता है, उसके बाद में से एंड गेम हो जाता है इसका. सो टाइप ऑफ रिजर्वायर, ह्यूमन, एनिमल एंड रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स. यानी नॉन लिविंग थिंग्स यानी फोमाइट्स. फोमाइट्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, रिटर्न में भी और वाइवा में भी. ज्यादातर बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे थे, आंसर नहीं लिखा था. मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम इन चीजों में समझते हैं, हमें सब आता है. मैं वो एरिया बता रहा हूं, नोट कर लो कि इसको अपने को मास्टरी कर लेनी है लिखने में और समझने में. एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन रिजर्वायर आर मीजल्स केस, पोलियोमाइलाइटिस केस, वायरल हेपेटाइटिस बी, ए, ई, इस तरीके से ना ह्यूमन रिजर्वायर्स. इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया एंड कोलेरा, pertussis, whooping cough. Person may be case or carrier for the disease, and the presence of infection in a person may be clinical, subclinical or latent. Latent यानी hidden. A case is defined as a person in the population or study group identified as having particular disease or health disorder or condition under investigation. Cases may be identified using clinical, biochemical or laboratory methods, and the presence of infection in a host may be clinical, subclinical or latent, hidden. This is a case of leprosy. अब यह कौन सा? लेप्रोमेटस लेप्रोसी है. जब क्लासिफिकेशन करते हैं लेप्रोसी का तो इसके दो पोल्स हैं, ट्यूबरकुलाइड नॉन इन्फेक्शियस एंड लेप्रोमेटस इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस. और ये कंडीशन आती है ज़्यादातर जब अपन ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उसको रिएक्शन होता है, लेप्रा रिएक्शन.
और इसी स्टेज में हाईली इन्फेक्शियस होता है, इसी टाइम पे इसको आइसोलेशन की आवश्यकता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लेप्रोसी केसेज आर नॉट इन्फेक्शियस। 80% 90% केसेज आर नॉन इन्फेक्शियस, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। कैरियर्स, carrier is defined as the infected person or animal that harbors infectious agent in the absence of clinical disease. यहाँ clinical disease नहीं है, but serve as a source of infection for others. Result from inadequate treatment or immune response. inadequate treatment की वजह से carrier stage develop होती है, और immune response यदि body नहीं कर पाती है तो भी carrier stage develop होती है। Less infectious but more dangerous. क्यों? इससे कोई भी प्रिकॉशंस नहीं रखता है, और ऐसे केसेस ज्यादा केसेस स्प्रेड करते हैं। सो 3 तरह के कैरियर होते हैं: इंक्यूबेटरी कैरियर, कॉन्वलिसेंट कैरियर एंड हेल्थी कैरियर। ड्यूरेशन के हिसाब से टेम्पररी और क्रोनिक। और पोर्टल ऑफ एग्जिट से यूरिनरी कैरियर्स, इंटेस्टाइनल कैरियर्स, रेस्पिरेटरी कैरियर्स एंड अदर्स होते हैं। Shed infectious agent during the incubation period of the disease. अब incubation period of disease यानी जबकि symptoms नहीं आए हैं, उस पीरियड के अंदर जो शेड करते हैं वो होते हैं incubation period carriers, capable of infecting others before onset of the illness. And the measles, polio, measles में क्या होता है, 4 days before and 5 days after the presence of rash infective होता है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड के ही दौरान ये इन्फेक्टिव होता है। ऐसा ही पोलियो में है, ऐसे इन्फ्लुएंजा में, डिप्थीरिया में, मम्प्स में, हेपेटाइटिस बी में। कॉन्वलिसेंट कैरियर्स शेड इन्फेक्शियस एजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्वलिसेंस, यानी जब रिकवरी स्टेज में होते हैं तब करते हैं। एंड द पीरियड ऑफ कॉन्वलिसेंस इज पीरियड आफ्टर क्लिनिकल रिकवरी। एंड द कोलेरा, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड डिसेंट्री, टाइफाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वलिसेंट कैरियर। कोलेरा इसलिए अपन डबल इंक्यूबेशन पीरियड लेते हैं, और हमेशा जब भी सैंपल लेते हैं तो उसमें जब तक निगेटिव नहीं आए, 2 सैंपल्स या 2 इंक्यूबेशन पीरियड नहीं निकल जाए, तब तक उसको हम फ्री नहीं घोषित करते हैं। सेम इज द डिप्थीरिया, पर्टूसिस, डिसेंट्री एंड टाइफाइड। हेल्दी कैरियर्स में हु हैव डेवलप्ड कैरियर स्टेट विदाउट सफरिंग फ्रॉम द ओवर डिजीज, जिसमें डिजीज के सिम्टम्स भी नहीं आए, यानी and emerge from subclinical cases, and cholera, polio, diphtheria, meningococcal meningitis are the examples of the healthy carriers. Shed infection agent in a short period of time, temporary, and in this category some of the incubatory and convalescent carriers may be included like measles, mumps, यानी respiratory diseases के जितने भी common हैं respiratory infections वो सारे इसमें आते हैं। measles, mumps, influenza, रूबेला यानी जर्मन मीजल्स, एंड वोपिंग कफ। जर्मन मीजल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि प्रेग्नेंट मदर सफर्स फ्रॉम दिस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर देन इट लीड्स टू द कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, और उसमें बच्चे में होने वाले बच्चे के अंदर ऑर्गन डिफॉर्मिटीज जो हो जाती हैं, और उसकी वजह से कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या कैटरैक्ट और इस तरह की जो होते हैं ना प्रॉब्लम्स मिलेगी। शेड इन्फेक्शियस एजेंट from the indefinite period of time, and the more important source of infection than the cases hepatitis B, malaria is a chronic carrier, dysentery, diphtheria and typhoid. Dysentery is very common, and this has been reported in the most poverty areas where the sanitations are not good, so there this stage never ends। क्या कहते हैं, हमारे तो ट्रीटमेंट कितना ही ले लो, दवा बंद कर देते हैं, फिर वही सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, यानी दिस इज कैरी ऑन बिकॉज द कंप्लीट ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन। सो टाइफाइड मेरी इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्रोनिक कैरियर। टाइफाइड कैरियर एनी फूड नॉट कुक्ड आफ्टर प्रिपरेशन, एंड इन दिस मैनर द फैमिली आफ्टर फैमिलीज में इन्फेक्शन होती है। फर्स्ट पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट्स आइडेंटिफाइड एज एन हेल्दी chronic carrier of the typhoid fever, presumed to have infected 51 people, 3 of whom died over the course of her career as a cook.
and she rarely used to wash her hands. उसमें करना क्या था, उसको सिर्फ wash the hands before cooking. And culture of Mary urine and stool taken forcibly revealed Salmonella typhi. An autopsy found evidence of live typhoid bacteria in her gallbladder. तो ये पूरी टाइफाइड मेरी जो क्रोनिक कैरियर का बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल है उसकी कहानी है. Carried as per portal of exit, urinary carrier is seen in typhoid. Intestinal carrier in typhoid, polio, vacillary and amoebic dysentery, and respiratory carriers are measles, influenza and rubella mumps. So this is droplet infection and very common respiratory carriers. Non-living reservoirs, soil can act as a reservoir of infection, so tetanus, anthrax, zygomycosis, coccidiomycosis, mycetoma foot and Clostridium perfringens causing the gas gangrene are the examples of non-living reservoir in soil. So infectious disease में terminology के हिसाब से बात करें, exposed potentially infectious contact between an organism and a potential host leads to infected, and pathogenesis, the organism causes changes in the physiology of an infected host affecting survival and reproduction, and this host is said to be a diseased. So exposed leads to infected, infectious, infectious, and infectious to diseased. So infectious doesn't mean diseased. So they are the two different conditions. So infections, onset of symptoms and onset of shedding, and this is leads to the different type of reservoirs as well as carriers. So natural history of infectious and infectious diseases is dynamics of disease में time of infection. Susceptible is affected, then it starts incubation period and infection post has been started, and then the symptoms comes, then the period between the entry of the organisms to the then susceptible have a latent period as well as the infectious period. So infectious period is when the symptoms are there, infection transmissible and infection not transmissible. So they are the different models which show different situations when how these things will be presented. So non-diseased persons are immune, carrier, dead or recovered. So mode of infection is mostly the droplet, vector or vehicle. Vehicle includes water, food, milk, meat. They are the vehicles. And airborne. End of the today's class.